Welcome to Galaxy Coaching Institute. Dear students, we have read the first chapter of Flamingo, named the last lesson in the earlier videos. Today we are going to discuss the second chapter of Flamingo, named Lost Spring. This lesson has been written by Anish Jung, who born in Rourkela and spent his childhood and adolescence in Hyderabad. Her parents were also the writer. Once she came to visit Simapuri. Simapuri is a part of Delhi. It is lies in the outskirts of Delhi. Most of the people of Simapuri are poor persons and they belong to the family of rag pickers. One day, when she was going in the morning, she saw a boy who was collecting some garbage. Seeing the boy, she said, "Why do you not go to school, Bub?" He said simply that, "Ma'am, there is no school in my locality." She said, "If I would open the school, would you come?" He said, "Yes, ma'am, I will surely come." But she knew very well that she will not open the school and she has given a wrong idea in the mind of the student of the right picker. On the second visit, when the boy saw her, he came to her and asked that, "Ma'am, have you opened school?" She said, "Still not. But really, I would open school." After this, on the third meeting, she asked the boy, "What's your name?" He said, "Ma'am, my name is Sahib Aram." She said, "Do you know what is the meaning of Sahib Aram?" He said, "Ma'am, there is no need to know the meaning of my name because I know that I can collect the garbage and this is my profession." But she explained the meaning of his name, that the meaning of your name is that you are the master of the universe. In this way, once again, in the fourth meeting, he was not wearing slippers. Then she asked, "Why do you not wear slippers?" He said, "Ma'am, my mother did not give me." And the other boy who was with him, he said, "Ma'am, if her mother would give him the slipper, he would throw them off." Ma'am saw the feet of the boy. He was shuffling his feet because he was wearing two different type of shoes. Perhaps he collect one shoes from other garbage heap and the second shoes he collect from the second garbage heap. The third boy came very innocently to ma'am and asked, "Ma'am, I did not use slippers in my life. Please arrange one pair for me." But the fourth, who was the boss of the team, he came to ma'am and said, "Ma'am, I want to tell you that we have slippers, but we do not wear." She asked, "Why?" He said, "Not only we wander in the small streets or poor colonies, but we wander in the rich people's colony, and it is the fashion to walk on the grass in the morning." She knew very well that what a clever boy he was, and he hid his his problem of poverty under this example. After this, she shared an example of Udipi village to the readers, that before 30 years ago, she went to a village, Udipi, and she saw that there was a temple and there was a priest. The priest was very simple and ordinary person, and the temple was also ordinary.
but there were many devotee persons present there. The son of the priest always prayer to goddess, oh goddess, please arrange one pair of shoes for me, because all my friend have shoes. By the grace of the goddess, a devotee gave him shoes, but he looked after those shoes very well. After 30 years, when she came in the same village, she saw that the temple have become modern and the priest was also in a very rich clothes, and his son came from the school. He threw his bag one side and threw his socks in the other direction also. She noticed why he is doing so, because he got those things very easily. So in the comparison of the boy, he got those things very easily, so he did not know the use of those things. After this, he said, after this, Anis Jung went to the boy and she said that, my dear son, you should do some good work, because in this work there is no reputation, no money. He said, ma'am, I will think. After many days, when she saw that a boy was going on the hilly area, she said that, where are you working nowadays? He said, ma'am, I am doing work at the tea stall. But this canister is very heavy, and the content which lies in the canister belongs to the master, and I have lost my freedom, so I don't like this job. In this way, the writer want to say in this lesson, and she left a message that the work is good in which we have full freedom. In this lesson, she wants to tell us that Sahib-e-Alam has lost his freedom, because in that profession, garbage was his own business and he was carefree living that life. Dear students, the summary of the Lost Spring in Hindi. Lost Spring, ये जो लेसन है, इसको अनीस जंग ने लिखा है, जो राउरकेला की रहने वाली है। उनका बचपन, उनकी किशोरावस्था हैदराबाद में बीती। उनके पेरेंट्स भी कवि थे। इस लेसन में उन्होंने फोकस किया है लॉस्ट स्प्रिंग पर। स्प्रिंग बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु जो ऋतुओं का राजा कहलाती है, लेकिन इस लेसन में लॉस्ट स्प्रिंग से मतलब है हमारा कि खोता हुआ बचपन। बचपन एक सबसे अच्छी आयु का एक चरण होता है, और कुछ बच्चों का बड़ी अच्छी तरह से बीतता है, कुछ का बहुत ही बुरी तरह से बीतता है। अनीस जंग दिल्ली गई, और दिल्ली का एक एरिया पड़ता है सीमापुरी। कहने को ये दिल्ली में लिखा जाता है, लेकिन ये दिल्ली से मीलों दूर है, और वहां पर अक्सर जो लोग रहा करते थे वो कूड़ा बीनने वाले थे। तो वो कूड़ा बीनने वालों की बस्ती में गई। सुबह का समय था, वह घूमती हुई सड़क के किनारे जा रही थी, और जब सड़क के किनारे गई तो उसने देखा कि एक बच्चा सड़क के किनारे घूम रहा था, कूड़ा इकट्ठा कर रहा था। उसने उस बच्चे को देखा, उसे बड़ी दया आई। उसने कहा, बेटा तुम स्कूल नहीं जाते हो? एट रैंडमली क्वेश्चन कर लिया कि स्कूल नहीं जाते हो? उसने कहा, मैम हमारे मोहल्ले में स्कूल है ही नहीं। एट रैंडमली उसने कहा कि अगर मैं स्कूल खोल लूं तो क्या तुम आओगे? उसने कहा, मैम अगर आपने स्कूल खोला तो मैं जरूर आऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसने रियलाइज किया कि उसने बच्चे के दिमाग में एक झूठा विचार डाल दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वो स्कूल खोलने वाली थी नहीं। सेकेंड विजिट में 2-4 दिन के बाद जब लड़का फिर से मिला उस लेखिका को, तो उसने कहा कि मैम स्कूल खोल लिया आपने? कब से हूं? उसने कहा, देखो बेटा
स्कूल बनाने में समय लगता है, मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, स्कूल खोलूंगी जरूर। फिर एक बार उसने उसको चीट कर दिया। तीसरी बार जब मुलाकात होती है तो तीसरी बार मैम ने कहा कि बेटा अपना नाम बताओ। उसने कहा मैम मेरा नाम साहिब ए आलम है। उसने कहा क्या तुम जानते हो साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है? उसने कहा मैम नाम की मीनिंग की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, और जानकर करूंगा क्या, क्योंकि बिना जाने भी कूड़ा इकट्ठा करना है और जानकर भी कूड़ा ही इकट्ठा करना है। उसने कहा कि बेटा तुम्हारे नाम का अर्थ होता है इस ब्रह्मांड के मालिक, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। उसने कहा तो मैम क्या हुआ, फिर भी मुझे यही काम करना है। अब चौथी मीटिंग जो होती है वो देखती है कि साहिब आलम अपने दोस्तों के साथ कूड़ा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसके पैर में चप्पल नहीं थी। तो अनीश जंग ने कहा कि बेटा स्लीपर नहीं पहने तुमने? उसने कहा मैम क्या करूं, मां को कहा था, उसने मना कर दिया। तभी एक दूसरा बच्चा आया, उसने कहा कि मैम अगर इसकी मदर इसको स्लीपर दे भी देती तो इसको कौन सा दिमाग रखा फेंक देता। मैम ने उसके पैरों की ओर देखा, उसने दो अलग अलग तरह के जूते पहने थे। शायद एक किसी अलग कूड़े के ढेर से मिला होगा और दूसरा किसी दूसरे कूड़े के ढेर से। लेकिन उस बच्चे के लिए छेद वाले जूते भी एक सपने के बराबर थे। तभी एक तीसरा बच्चा आया, बड़ी मासूमियत से बोलता है कि मैम हमने तो कभी जूते पहने ही नहीं, प्लीज एक जोड़ी जूते हमें भी अरेंज करा दीजिए ना। लेकिन एक चौथा लड़का जो उस पार्टी का बॉस था वो आया, उसने कहा मैम इधर आओ, मैं बताता हूं, जूते तो हमारे पास हैं लेकिन हम पहनते नहीं। मैम ने कहा अच्छा जूते तुम्हारे पास हैं पहनते नहीं, क्यों भाई? उसने कहा मैम प्रॉब्लम यह है कि देखो हम छोटी मोटी कॉलोनी में नहीं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में भी घूमते हैं, रिचेस्ट एरियाज में घूमते हैं, तो सुबह के समय ठंडी ओस पर नंगे पैर चलना एक फैशन होता है। मैम ने सोचा कि कितना चालाक लड़का है, अपनी गरीबी को कितने अच्छे कमेंट से छुपा गया। अब मैडम को एक बात याद आती है कि 30 साल पहले एक उदीपी गांव का एक व्यक्ति था, उसने एक घटना बताई थी कि 30 साल पहले वहां पर एक मंदिर हुआ करता था। मंदिर में पुजारी बहुत ही साधारण था और वहां पर भक्तों की लाइन थी उस समय। और उसका एक बेटा था, वो जब भी स्कूल जाता तो देवी माँ से हमेशा प्रार्थना किया करता था कि हे देवी माँ एक जोड़ी जूते मुझे भी अरेंज करा दीजिए, मेरे सभी दोस्तों के पास जूते हैं। देवी माँ की कृपा हुई और एक भक्त ने उसको एक जोड़ी जूते दे दिए। जब उसको एक जोड़ी जूते मिल गए तो बड़े ही अच्छी तरह से उनकी केयर किया करता था, क्योंकि बड़ी मन्नतों के बाद वो जूते मिले थे। अब 30 साल के बाद फिर से मैम एक बार उसी गांव में जाती हैं और उस गांव में जाने के बाद देखती है कि मंदिर बहुत ही हाईटेक हो चुका था, पुजारी फर्स्ट क्लास कपड़ों में बैठा हुआ था और उसका बेटा कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर आया और उसने बैग को घुमाया, एक साइड में फेंका और बुक दूसरी साइड में फेंकी। अब मैडम के दिमाग में बात आई कि एक लड़का वो था और एक लड़का ये है जो इतनी केयर करता था और ये केयर नहीं करता। क्यों? इसका रीजन ये था क्योंकि उसको जो भी चीज मिलती थी वो बड़ी प्रतीक्षा के बाद, बड़ी मन्नतों के बाद मिलती थी और इसको आसानी से मिल जाती थी, तो इसलिए इसको उन चीजों का कोई भी किसी प्रकार का एहतियात नहीं है, किसी प्रकार की कोई उसमें यह केयर नहीं करता है। उसके बाद फिर से लेखिका साहिब आलम से कहते कि बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम बिजनेस करते हो कूड़ा बीनने का, इसमें तुम्हें कितना पैसा मिल जाता है? उसका मैम कभी 1 रुपया भी मिल जाता है, कभी 10 भी मिल जाते हैं, कभी चांदी का सिक्का भी मिल जाता है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो ये होती हैं कि हम और कमाएं। लेकिन जहां तक उनके माँ बाप की बात थी, माँ बाप के लिए केवल पेट भरने का एक साधन था ये कूड़ा बीनना, लेकिन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा सपना था, वो इस सपने में बहुत बड़ा बनना चाहते थे। मैम ने उसको सलाह दी कि बेटा देखो कोई ढंग का काम कर लो, कोई रेपुटेड काम कर लो। उसने कहा मैम सोचूंगा। तो कई दिनों तक साहिब आलम से
मैम की मुलाकात होती नहीं है। एक दिन जब देखती है कि एक बच्चा ऊपर चढ़ाई पर चढ़ रहा है और उसके कंधे पर एक स्टील का कैनिस्टर है, तो उसे ऐसा एहसास लगा कि परहैप्स ये साहिब आलम होगा। तो उसने कहा, बेटा साहिब। साहिब ने मुड़कर देखा, उसने कहा, यस मैम। उसका, बेटा कहाँ काम करते हो आजकल? उसने कहा कि मैम वो जो चाय की दुकान है वहां पर मैं काम करता हूँ। उसका, अच्छा बेटा कितने पैसे मिल जाते हैं तुम्हें? उसने कहा, मैम मुझे 800 रुपये मिल जाते हैं, 2 वक्त का खाना भी मिल जाता है। तो मैम ने सोचा कि शायद जो उसने सलाह दी उसके काम आ गई। उसने कहा कि बेटा खुश हो ना? उसने कहा, मैम खुश नहीं हूं। उसने कहा, भाई क्यों? उसने कहा, मैम मानता हूं 800 रुपये मिलते हैं, 2 समय का 2 वक्त का खाना मिलता है, लेकिन ये कनस्तर बहुत भारी है, इसमें जो कंटेंट है, जो सामान है वो भी बहुत भारी है, और इसका संबंध मुझसे नहीं बल्कि मालिक से है। और तो और छोड़िए, ये साहिब भी सुबह 8 से शाम के 8 तक उसी चाय वाले का गुलाम है। अर्थात मैंने अपनी आजादी खो दी। मुझे वो काम अच्छा लगता था मैम, जब पॉलीथीन बैग भी मेरा होता था, उसमें कूड़ा भी मेरा होता था और सपना भी मेरा होता था, वो काम अच्छा था। तो अर्थात इस लेसन में लेखिका ने केवल एक ही बात बताने की कोशिश की कि जो हमारा कोई भी हम कार्य करें जिसमें हमें पूरी आज़ादी होती है, वो काम बहुत अच्छा होता है, और जो काम हम गुलामी में करते हैं वो बहुत ही बुरा काम होता है। तो आज़ादी सभी जीवित प्राणियों का सबसे बड़ा सपना होता है। इस लेसन में इसी कंसेप्ट को लेखिका ने बनाया है, बताया है। इसी के साथ मित्रों धन्यवाद, और नेक्स्ट लेसन हम इसका जो रीडिंग पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।